دریائے راوی، چناب اور ستلج کی خوفناک لہروں نے پنجاب میں ہر طرف تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلوں میں متعدد دیہات ڈوب گئے، فصلیں تباہ، لاکھوں افراد متاثر، مویشی بھی بہہ گئے۔ مختلف حادثات میں 30 افراد جاں بحق، ہزاروں بے گھر، رہائشی علاقوں میں ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکیں اور گلیاں مکمل زیر آب، 20,000 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی ختم ہو گئی۔ شہری علاقے بھی شدید متاثر۔ دریائے راوی کا سیلابی ریلا خانے وال کی طرف رواں دواں۔ فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مطابق ریلا 24 گھنٹے بعد ہیڈ سدھانی سے گزرے گا۔ علاقے میں سینکڑوں ایکڑ اراضی متاثر ہونے کا خدشہ۔ پاک پتن میں دریائے ستلج کے مقام پر سیلابی ریلے نے قیامت ڈھا دی۔ پانی نے سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی اور متعدد بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہائی الرٹ جاری، علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ بھارت کا ایک اور آبی وار اپنے علاقے بچانے کے لیے دفاعی بند توڑ دیا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ کیوسک سے زائد ریکارڈ۔ قصور کے قریب دریائے ستلج میں انتہائی خطرناک صورتحال۔ اونچے درجے کے سیلاب نے کئی مقامات پر حفاظتی بند کو تہس نہس کر دیا۔ سیلابی پانی گنڈا سنگھ والا گاؤں میں داخل، سرحدی علاقے زیر آب۔ گنڈا سنگھ والا پریڈ پوائنٹ، مونومنٹ بھی ڈوب گئے۔ مساجد میں گاؤں خالی کروانے کے اعلانات، لوگوں کی نقل مکانی۔ بورے والا میں بھی بے رحم موجوں سے ساہوکا اور جملیرا سمیت متعدد علاقے زیر آب۔ زمینی راستے منقطع۔ پنڈی بھٹیا میں 100 سے زائد دیہات میں پانی بھر گیا۔ علاقہ مکین گھروں میں محصور۔ دریائے جہلم میں چھوڑے جانے والے پانی سے سطح 5 فٹ تک بلند، 16 سے بڑھ کر 23 فٹ ہو گئی۔ راجن پور کو بھی شدید خطرہ۔ دریائے چناب میں بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ احمد پور، سیال، گڑھ مہاراجہ اور جتوئی کے درجنوں دیہات کو لپیٹ میں لے لیا۔ گڑھ مہاراجہ سے گزرنے والے 10 لاکھ کیوسک کے سیلابی ریلے سے مزید تباہی کا خدشہ۔ شہر سلطان میں سیلابی ریلے کا خطرہ، ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ فلڈ سپر بند پر ریسکیو کا کنٹرول کیمپ قائم۔ آج رات ہیڈ تریمو اور باہو پل گڑھ مہاراجہ سے 10 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا گزرنے کا امکان۔ اکھاڑا کے مقام پر دریائے راوی میں کنڈ، بوہڑ اور ماڑی پتن پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ سینکڑوں دیہات ڈوب گئے اور زرعی رقبہ زیر آب۔ علاقہ مکینوں کا انخلا جاری۔ سرائے مغل ہیڈ بلوکی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ سیلابی پانی اتاڑی، دولو ملتانی، اوجلا، گروکی، کالو کھوکر سمیت مختلف دیہات کی طرف بڑھنے لگا۔ متعدد مقامات پر عارضی بند ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ 3,03,000 کیوسک گنڈا سنگھ پہ وہ چل رہا ہے۔ کنٹینوس فلو جو ہے وہ ہمارا 2,61,000 کیوسکس کا گنڈا سنگھ کے مقام پر رہا۔ تقریباً 22 دیہات کو اس پانی کے متوقع خطرے کے پیش نظر وہاں سے خالی کروایا۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال برقرار۔ متاثرہ اضلاع میں ریلیف اینڈ ریسکیو سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان کاٹیا کہتے ہیں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 3 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں کو خالی کروا لیا گیا۔ سیلابی ریلا ہیڈ سلیمانکی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس وقت ہیڈ تریمو پر 1,45,000 کیوسک کا ریلا ہے۔ دریائے راوی میں پانی تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ ہیڈ مرالا پر پانی 1,75,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ سول انتظامیہ بھی شامل۔ دریائے ستلج اور ہیڈ سلیمانکی کے متاثرہ علاقوں میں گھرے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پاک فوج نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر کئی ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے۔ اب تک متعدد دیہات سے ہزاروں افراد کو مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ متاثرین کی ضروری طبی امداد کے انتظامات مکمل۔ پاک فوج ہمیشہ کی طرح خدمت کے جذبے کے ساتھ ریلیف آپریشن میں مصروف ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی کے غیر معمولی اخراج کے باعث دریائے سندھ کے دریاؤں میں بھی طغیانی۔ شدید سیلابی ریلے سے نوشہر و فیروز کے کچے کے علاقوں میں تباہی۔ ہزاروں ایکڑ زرعی زمین مکمل طور پر تباہ۔ درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ لاکھوں مکین اپنی جان و مال بچانے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ حکومتی غفلت، انتظامی بے حسی سے مقامی لوگ شدید مشکلات اور پریشانی میں مبتلا۔ کوٹری ڈاؤن اسٹریم میں نچلے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ 4 سے 5 ستمبر کے دوران گڈو سکھر کے مقام پر سیلاب کا خدشہ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی متعلقہ اداروں کو پیش کی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔
पंजाब से आने वाले सैलाब से निमटने की तैयारियां सिंध हुकूमत ने भी कमर कस ली। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सखर, गुड्डू और कोटली बैराज में पानी का बहाव तेज, 16,50,000 अफराद सिंध में सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। सिंध हुकूमत मुमकिना सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रही है। तौनसा के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। 2 या 3 सितंबर को पानी का रेला सिंध में दाखिल होगा। कुनेर में मूसलाधार बारिश से एक मरतबा फिर पीर बाबा बाजार की नदी में पानी का बहाव तेज। सैलाबी रेले से नदी के कटाव पर जिला इंतजामिया के मुताबिक इलाका मकीन को अलर्ट जारी कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बालाकोट में हस्सा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कागान को 4 घंटे बाद खोल दिया गया। भारी पत्थर हटाकर सड़क यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसी दर्जनों गाड़ियां अपनी मंजिल की जानिब गामजन। किसी भी मुमकिना खतरे से निपटने के लिए भारी नफरी और ट्रैफिक एहलकार मौके पर तैनात। मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल की आमद। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। लाहौर में सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी पानी से भर गई। सीलिंग से पानी बहने लगा। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब के दीगर शहरों में भी बरसात से मौसम खुशगवार। कराची फिर गर्मी के निशाने पर। शहर में आज मौसम शदीद गर्म। वज़ीर रेलवे की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हनीफ अब्बासी की सैलाबी सूरत हाल में 24 घंटे ट्रेन और ट्रैक की निगरानी। हादसा से बचाव के लिए पेश की इंतजामात की हिदायत। मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम और रेलवे सर्विसेज को मयारी और अवाम दोस्त बनाया जाए। स्टेशन पर सफाई और बुनियादी सहूलियात पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। मुतालिका इंतजामिया को हुक्म। पंजाब में सैलाब की लम्हा बा लम्हा कवरेज में GTV न्यूज़ सबसे आगे। पंजाब भर के ज़ेरे आब इलाकों से भरपूर कवरेज। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे नाजरीन को बाखबर रखने के लिए हर जगह पहुंचे और मुतासरीन की फरियाद को हुक्काम तक पहुंचाया। अपने नाजरीन को सैलाब की मुसद्दिका इतलात से पल पल बाखबर रखा। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। इंडियन मीडिया ने 3 पाकिस्तानी शहरियों को दहशतगर्द करार दिया। हसनैन अली, मोहम्मद उस्मान और आदिल हुसैन के बयानात सामने आ गए। शवाहिद से साबित हो गया कि तीनों शहरी रोजगार के लिए कंबोडिया जा रहे थे। झूठी खबर पर भारतीय मीडिया का रेड अलर्ट भी जारी। मोदी हुकूमत बिहार इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान को निशाना बना रही है। हम दहशतगर्द नहीं, भारतीय मीडिया झूठी खबरें नशर कर रहा है। भारत फॉल्स फ्लैग तर्ज पर एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड खेल रहा है। तीनों शहरियों का मौक़िफ़। आलमी सतह पर भी फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और आलमी जरीदे जनरल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी के मुतरिफ निकले। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल को मर्द आहन करार दे दिया। मारूफ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट एल्दार मेमदोफ ने अपने आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई। फील्ड मार्शल के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़िन रवैये ने अमरीकी सदर को मुतासिर किया। पाक चीन दोस्ती में नया संगे मील। चीनी सदर की वजीर आज़म को दौरा चीन की दावत। शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग और वजीर आज़म ली कियांग से अहम मुलाकातें होंगी। पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आज़म चीन की मिलिट्री परेड में भी शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करने के लिए अहम संगे मील। पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश के बाद लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम करने वाला खित्ते का तीसरा मुल्क बन गया, जो सरहदी इदारों के माबैन मौसर हम आहंगी के लिए मजबूत मैकेनिज्म तश्कील देगा। पाक सऊदीया ताल्लुकात में मजीद गर्म जोशी। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी में मुखलिसाना, बरादराना और मौसर किरदार पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बरादर दोस्त मुल्क
ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। गेमिंग बिल का पास होना इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए खसारा। एशिया कप में भारतीय टीम को जर्सी के लिए स्पॉन्सर नहीं मिल सका। बड़े इवेंट में भारतीय टीम का बगैर स्पॉन्सर के जर्सी पहनने का इम्कान। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक एशिया कप से कबल स्पॉन्सर तलाश करना एक मुश्किल मरहला है। स्पॉन्सर से $44 मिलियन का मुआहदा था। मुआहदा खत्म होने से इंडियन क्रिकेट बोर्ड 1000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान होगा। रवा बरस सिंध भर में डेंगू और मलेरिया के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। डेंगू के 448 केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट। सिर्फ कराची में 384 मरीज। मलेरिया के 1,22,568 केसेस ने महकमा सेहत को अलर्ट कर दिया। दिमागी मलेरिया के भी 3 केसेस रिपोर्ट। तमाम मरीजों का ताल्लुक हैदराबाद से है। गजा में इसराइली बर्बरियत उरूज पर ज़मीन पर जहन्नम का मंजर, हर तरफ तबाही, लाशें और आहों की गूंज। सिर्फ 24 घंटों में 60 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 63,000 से तजावुज़ कर गई। 5 मजीद अफराद भूख से दम तोड़ गए, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जामा होने वालों की तादाद 322 हो गए। इसराइली बमबारी से गजा सिटी खंडर में बदल चुका। उनबा के मुताबिक जबरी इनखला से 10 लाख अफराद दरबदर हो जाएंगे। अमरीकी महकमे खारजा का इसराइल नवाज इक़दाम। फ़लस्तीनी नुमाइंदों को वीज़ा जारी करने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत पर पाबंदी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और PLO पर वादा खिलाफी, आलमी अदालतों से रुजू और यकतरफा रियासती तस्लीम की कोशिशों का इल्ज़ाम लगा दिया। इसराइल की जानिब से अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम। फ़लस्तीनी मंदूब का इजहार तशवीश। तुर्किया का इसराइल से तमाम तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। तुर्किया के जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक दिया गया। हाकान फ़दान का कहना है कि गज़ा में जारी नस्ल कुशी की हकीकत दुनिया तस्लीम कर चुकी है, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की दिल दहला देने वाली कहानी पर मबनी फिल्म ने रिलीज से पहले ही आलमी तवज्जो हासिल कर ली। हिंद रजब को गुज़िश्ता साल गजा में इसराइली फ़ौज ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था। आइंदा माह 3 सितंबर को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में मुकाबले के लिए पेश किया जाएगा। यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाबंदियों की बहाली पर ईरान के जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने की तैयारी। NPT मुआहदे से निकलने की करारदाद पार्लियामेंट में पेश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि यूरोपीय ममालिक के पास स्नैप बैक मैकेनिज़्म फ़ाल करने की कोई कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं। ईरान अपने कौमी हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब रद्द-ए-अमल देगा। अमरीकी अदालत का बड़ा फैसला। ट्रंप की मुआशी पॉलिसी को बड़ा धचका। वफाकी अपील कोर्ट ने सदर ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत की ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने के लिए टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाज़त। फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ट्रंप अदालती फैसले पर शदीद बरहम। कहा कि अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। 3 मुल्की सीरीज। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। अफगान टीम 183 रन के ताक़ुब में 143 रन पर ढेर। कप्तान सलमान अली आका ने नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलते हुए 53 रन बनाए। साहबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज 21 रन बना सके। फ़खर जमान 20, मोहम्मद हारिस 15 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मैच आज खेला जाएगा।